Okay, so good morning again. Welcome everyone. So today we are meeting on 27th October 2024 and we are doing in our Sunday meeting, Sunday morning meetings, the bilingual reading of Anubhavatmak Adhyatmvad, which is an integral part of Madhyas Darshan or whole meditative, Anubhavatmak Adhyatma, which we are translating to English as the title as Realization Centered Spiritualism. So we are reading it in bilingual mode, Hindi and English. We'll just go to the point where we wrapped up last time. So this is where we are. One moment. Good morning, Bhaiya. Good morning, everyone. Namaste, Ganesh Bhaiya. Namaste. Namaste. Okay, so here, where we left off last time, Babaji is talking about Jivan Kriya. Okay, so if we see here, only in awakened Jivan or naturally constituted entity in the form of four orbits and the central particle, it is seen that sequentially Man achieves realization in Vritti, Vritti in Chit, Chit in Buddhi, Buddhi in Atma, and Atma eventually Atma achieves realization in coexistence. Achieving realization is the accomplishment of wisdom and its continuity. Okay, this is where we wrapped up last session. We can continue from here. आप बताइए देव भाई, आप ही शुरू करेंगे पहले? जी भैया. जी. And if Spencer is here, we can right away decide. Spencer, you will be willing to read the English part? Yes, I'll be very glad to read the English part. And I will probably have to leave a little bit early today. Okay. Mahendra and Naomi, they're actually coming to India for 6 months tomorrow morning with the children. So I'm just going to be helping them to pack up. Yeah. So be comfortable till the time you are in, you can read. Yes. Thanks. Yeah. जी देव भाई. Okay. बंधन भय पर्यंत मन शरीर के आकार में सम्मोहन विधि से प्रभावित रहता है. ऐसे भ्रमित मन के पक्ष में ही विचार, इच्छा, साथ ही तुलन में से प्रिय हित लाभ प्रवृत्त हो जाता है. फलतः भ्रम और भय का पुष्टि होकर हर शरीर यात्रा में प्रभावित होता है. इसको हर व्यक्ति सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित कर सकता है. उक्त विधि से शरीर केंद्रित मानसिकता और उसके अनुरूप जीने की आशा और उसके समर्थन में जीवन शक्तियों में से मन के समर्थन में होने के फलस्वरूप स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य की कल्पना को स्वीकारा गया, जिसके आधार पर भय और प्रलोभन को आवश्यक समझा गया, जिसकी सफलता के लिए आस्थावादी मानसिकता पर बल दिया गया. फलस्वरूप समुदाय परंपराओं में प्रकारांतर से आस्थावादी मानसिकता पनपते आया. सर्वाधिक भय और प्रलोभन के आधार पर ही आस्थाएं मानव में कार्यरत मनोकामना के रूप में अथवा मनमानी के रूप में रहना मिला. आस्थाएं अधिकांश रहस्यमय रहा, अतएव आस्थाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना संभव नहीं हुआ. Over to you, Spencer. While in bondage and fear, man is affected and fascinated, captivated, mesmerized by the body. In this state, all the desires and thoughts with perspectives of pleasant, health, and profit become supportive of such deluded man. It breeds delusion and fear, and this affects each subsequent bodily journey.
Everyone can verify it by way of survey. In this method, body-centered mentality and hope to live in accordance to that, and man from the faculties of Jivan being in its support. All this resulted in acceptance of the fictions of heaven, hell, sins, and virtues. Fear and temptation were felt necessary on this basis. Mentality of faith was emphasized for its success. Consequently, in one way or the other, the mentality of faith kept on flourishing in sectarian traditions. Predominantly, faiths based on fear and temptation were observed to be in the form of desire for fulfillment of wishes, or in the form of arbitrary actions. Mostly, the faiths remained mysterious, so expectedly, the evidence of faiths could not be established. Good. Thanks, Devi. Thanks, Spencer. So this is straightforward. बंधन और भय पर्यंत, पर्यंत मतलब तक, है ना? तो बंधन और भय पर्यंत मन शरीर के आकार में सम्मोहन विधि से प्रभावित रहता है. So while in bondage and fear, man is affected and fascinated by the body. Okay. मन शरीर के आकार में सम्मोहन विधि से प्रभावित रहता है. इन सिंपल द एसेंस ऑफ दिस आई एम टेकिंग इज, मन जो है वो शरीर से सम्मोहित रहता है. Okay, तो सम्मोहित के लिए there are three words which I had in mind. You guys tell me, each of you can share your view, which looks better. Man is affected and fascinated by the body. Man is affected and fascinated and captivated by the body, or man is affected and mesmerized by the body. So, I mean, all of them broadly indicate the same thing, but these are the three words I could think of. Any views? So, Spencer? yeah. When I read them, I personally would not choose the fascinated out of all three. Captivated and mesmerized seem a little stronger to me. Okay. Fascinated becomes just like a curiosity, like, wow, that's very interesting. Yeah. But the way I see is Jivan is really like gripped, by the senses. Like there's Yes. cannot escape, Yes. So Yes. for that, I think captivated or mesmerized would work. Mesmerized has a little bit more twist of like it's in delusion, because like it's kind of like mesmerized, like puts you into like a dream, like you cannot see clearly, Yeah. Whereas captivated seems a little bit, it's like more like captured, Yes. Yes. But both are good. It just depends on which angle you highlight a little bit. Captivated seems to be better than for me also. Captivated looks good. Okay. Yes, that looks better. Okay. So I think more important for us at this point is to get a sense of it. So basically, man is totally under the control of body. Okay, this is what we are trying to say. While in its true form, in the natural form, it is the man which should be controlling the body. Right now, what is happening is body is what is controlling the man. Okay, this is what Babaji is saying, bandhan, and while in bondage and fear, this is what happens. Actually, the whole cycle, the natural cycle turns upside down. Okay, the man should be driving the body, then but here in delusion, what happens? It is the body which is sort of pressurizing or influencing the man, and then we go upwards. It should be vritti, which under whose control man should be there, but in delusion again, this also is upside down. It is the man which is controlling the vritti, and then vritti controlling the chit. So I mean, this is the reverse that is happening.
and captivated. As long as we understand the sense of it, I am good with all three. Captivated looks good to me also. So while in bondage and fear, मन is affected and captivated by the body. ऐसे भ्रमित मन के पक्ष में ही विचार, इच्छा, साथ ही तुलन में प्रिय हित लाभ प्रवृत्त हो जाता है. In this state, all the desires and thoughts with perspectives of health, pleasant health and profit become supportive of such deluded मन. फलतः मन भ्रम और भय का पुष्टि होकर हर शरीर यात्रा में प्रभावित होता है. It breeds delusion and fear. Okay, भय, भ्रम और भय का पुष्टि होकर, मतलब भ्रम और भय जो है वो पुष्ट होता है. पुष्ट होता है मतलब स्ट्रांग होता है, तो उसको कैप्चर किया इस तरह से. इट ब्रीड्स डिल्यूजन एंड फियर. ओके, डिल्यूजन एंड फियर कीप्स ऑन ग्रोइंग एक्चुअली. And this affects each subsequent bodily journey. This bodily journey also, I do not know if there is a better phrase for this. Every शरीर यात्रा, हर शरीर यात्रा में प्रभावित होता है. Okay, till the time one overcomes its delusion. शरीर यात्रा को कैसे कैप्चर करें? How to put it in words? Does anybody have a suggestion? And this affects each subsequent bodily journey. How would you translate yatra? Just if you had to, I guess journey is what you chose. Journey, yes. Okay, so Jivan is driving one body. This time it is under delusion. Jivan is dissatisfied. Death happens to the body. Jivan again, starts driving another body. Again, it is in delusion. So it keeps on. This cycle continues till one overcomes the delusion. We can continue with body. Seems like it makes sense. Yeah. And if no suggestions are there, we'll continue with bodily journey for the time being. Devbhai, any suggestion? No, Bhaiya, not any different. Anyone else? Okay, so I think we can think about it later on also. Okay, when we are translating, these are the challenges we discover, and I think this is this is for us also during the week to keep thinking about it, and eventually things improve, the translation improves. So if someone thinks about it, a better option later on also, not only for this word, but for some other words or sentences also, your feedback is more than welcome. इसको हर व्यक्ति सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित कर सकता है. Everyone can verify it by way of survey. उक्त विधि से शरीर केंद्रित मानसिकता और उसके अनुरूप जीने की आशा. This is a long sentence. उक्त विधि से शरीर केंद्रित मानसिकता और उसके अनुरूप जीने की आशा और उसके समर्थन में जीवन शक्तियों में से मन के समर्थन में होने के फलस्वरूप स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य की कल्पना को स्वीकारा गया. In this method, उक्त विधि से, in this method, body-centered mentality and hope to live in accordance to that. शरीर केंद्रित मानसिकता और उसके अनुरूप जीने की आशा. And मन from the faculties of जीवन being in its support. और उसके समर्थन में जीवन शक्तियों में से मन के समर्थन में होने के फलस्वरूप. All this resulted in acceptance of the fictions of heaven, hell, sins and virtues. के फलस्वरूप स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य की कल्पना को स्वीकारा गया. ओके, तो कल्पना को फिक्शन लिखा है. नॉर्मली कल्पना को हम इमेजिनेशन लिखते हैं, बट आई थॉट दैट maybe imagination doesn't read too smooth. So all this resulted in acceptance of the fictions
of heaven, hell, sins, and virtues, or imagination. So basically, like I mean, then these concepts came up. Now these are the concepts which Babaji has at various times said that Swarg, Nark, etc. They are not a reality per se. Okay, there is no place in this existence which we can say this is where Swarg is located. This is where heaven is located. This is where hell is located. There are no such places, but in normal language and in most of the scriptures, it is mentioned that there is a place called heaven where the soul goes. Okay, this has been a narrative in many traditions. जिसके आधार पर भय और प्रलोभन को आवश्यक समझा गया. Fear and temptation were felt necessary on this basis. जिसकी सफलता के लिए आस्थावादी मानसिकता पर बल दिया गया. Mentality of faith was emphasized for its success. फलस्वरूप समुदाय परंपराओं में प्रकारांतर से आस्थावादी मानसिकता पनपते आया. Consequently, in one way or the other, the mentality of faith kept on flourishing in sectarian traditions. Okay, तो जब भी ये वर्ड आता है ना प्रकारांतर, and my interpretation is अलग अलग प्रकार से, प्रकार प्लस अंतर. सो प्रकारांतर से मतलब अलग अलग प्रकार से आस्थावादी मानसिकता पनपते आया. सो कौन से, तो उसको फिर बोला इन वन वे और द अदर, प्रकारांतर. Consequently, in one way or the other, the mentality of faith kept on flourishing. सर्वाधिक भय और प्रलोभन के आधार पर ही आस्थाएं मानव में कार्यरत मनोकामना के रूप में अथवा मनमानी के रूप में रहना मिला. Predominantly, faiths based on fear and temptation were observed to be in the form of desire for fulfillment of wishes or in the form of arbitrary actions. है ना, मनमानी को arbitrary actions. जो मन किया, whatever one feels like doing, they keep on doing that. आस्थाएं अधिकांश रहस्यमय रहा. Mostly the faiths remained mysterious. अतएव आस्थाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना संभव नहीं हुआ. So expectedly, the evidence of faiths could not be established. They were not understood fully. That's why they remained mysterious. So as long as it remains mysterious, a part of it remains mysterious, it is very difficult to convince the next generation to accept it. And then, like its evidence is not established. So expectedly, the evidence of faith could not be established. अतएव आस्थाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना संभव नहीं. This is straightforward है वैसे तो, no deeper or keywords here, but overall any feedback or any observation is there, let us discuss it. Quickly want to spend like 1 minute each on these two sentences we are. First, the first one itself. I'm sorry, I missed out when you were mentioning about the control part. Did you say body controlling the man? Yeah, controlling in the sense, sort of, man being under the influence of body. Man being under the influence of sensations. So man has tasted these sensory pleasures, and which of course man tastes through the body itself. Okay, and then this is where the man keeps its focus on the bodily part. Right. I mean, just as that I'm sure we don't want to give that impression that we are trying to say the body is actually controlling the man. Yeah, this is, I have to get more discipline on the words. Yes, that is correct. No, I mean, just Yes. that when we read this sentence Right. also, Yes. that should not be the sense. Yes.
It is just like the way I look at it in the common, the way we see it in the real world. I have seen many times a parent carrying a small child with them. So mostly, in the normal course of things, it is the parent who tells the child what to do. But then we see situations when the child is sort of very insisting on, no, this is what I want, and the child shouts and cries and throws tantrums, Right. and eventually the parent yields. Right. Okay. So then basically it is the child who is driving the parent. I mean, it's just a way of saying, but truly speaking, it is not. So it is just the parent yielding to the child. Right. ठीक है भैया. And thank you for this one. And moving on pretty much towards the end. Um, जी. सर्वाधिक भय और प्रलोभन के आधार पर ही आस्थाएं मानव में कार्यरत मनोकामना के रूप में अर्थात I could not really relate to this. So when we are saying आस्थाएं, how is it like मनमानी? थोड़ा confusion हुआ मुझे. Okay. Let us see. Generally, it is not actually. I mean, it's like this is how it has to be. If you, Yeah, see, I think what is being the way I have interpreted is one is astha in the sense of God and these kind of things, what we call the believers kind of thing. Like you have belief in some tradition, you have belief in some great man, you have belief in some holy book. Okay. The second is any beliefs which I believe in, manyataएं also, like I think here it is, it includes manyataएं also. So सर्वाधिक भय और प्रलोभन के आधार पर ही आस्थाएं मानव में कार्यरत मनोकामना के रूप में. I mean, here it is the आस्था part. Or when I see manmani, so manmani is like manyata. One has not understood the reality. One just assumes, one has made some assumptions. Okay, so in that sense, I am looking at manmani. okay, ठीक है भैया, makes sense. Okay, so आस्था में मतलब इस वाले सेंटेंस को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो I think that sort of it covers मान्यताएं also. So then मान्यताओं में we assume सुविधा equal to सुख, है ना? तो then one goes on the path of मनमानी. ठीक है भैया, all right, thank you. Deriving maximum pleasures from the body or from the senses, वो फिर जो है वो मनमानी की तरफ चलेगा. जी. I don't know. Again, arbitrary actions is good for money as far as this context is concerned, or any other suggestion is there? Yeah, these are some unique language words in some language where like we never thought of ever translating them to English directly, but here then we have to figure out how to capture the sense. I think the word is fine to me. The phrase is fine. Or unregulated actions or something along those lines. I'm not sure. Yeah, but it is similar to that in the form of arbitrary. भाई unregulated कैसे लग रहा है? Anyone else? Unregulated हिंदी में अनियमित. हाँ तो मनमानी भी somehow वैसा सही है कुछ This unrestrained. okay. For me, this one is much better. Yeah, arbitrary. This one is okay. Okay, so I think, I mean, we get the sense of it, and again, we keep on thinking about it. Maybe we'll get a phrase or word which captures it much better, and then we will change it also. For the time being, we can continue to the next para if there are no any further comments or observations. कौन पढ़ेंगे? Anyone volunteering for the next part, next para? मैं पढ़ लेता I हूँ. can read जी. भैया. जी जी. एक काम करते हैं, एक आप में से अभी पढ़ लें, तो गणेश भाई आप पढ़ लीजिए, फिर पूनम दीदी नेक्स्ट वाला आप पढ़. ठीक. जी.
यहीं से पढ़ना है ना भैया, भ्रमित स्थिति। हाँ, ये अनुभव संपन्न। अनुभव, अनुभव संपन्न जीवन से ही जीवन सहज अभिव्यक्ति है, जबकि भ्रम भी जीवन भ्रम के आधार पर ही होना देखा गया है। अनुभव और जागृति जीवन तृप्ति की अभिव्यक्ति होना पाया जाता है, जबकि भ्रम अतृप्ति का ही द्योतक होना देखा गया। भ्रमित होने का, रहने का, कार्य करने का मूल रूप जीवन ही है। शरीर भैया को जीवन, आपकी आवाज मुझे ही थोड़ी सी कम आ रही है, योर वॉल्यूम या अदर, इफ यू कैन, हाँ, स्पीक ए लिटिल बिट लाउड। ठीक है, दोबारा कोशिश करता हूँ। अनुभव संपन्न जीवन से, अभी बेटर आ रही है? जी ठीक है, चलेगा भैया। नहीं, मैं फिर ये इसको हटा देता हूँ अभी। अभी देख, अनुभव जीवन, अब ठीक है, अभी बेटर है भैया? हाँ ठीक है, चलेगा। आपको जैसे कंफर्टेबल आप वैसे रख ले, अगर आपने पहले लगाया, यू आर कंफर्टेबल विद दैट, ठीक मतलब है। वो भी चले। जी। अनुभव संपन्न जीवन से ही जीवन सहज अभिव्यक्ति है, जबकि भ्रम भी जीवन भ्रम के आधार पर ही होना देखा गया है। अनुभव और जागृति जीवन तृप्ति की अभिव्यक्ति होना पाया जाता है, जबकि भ्रम अतृप्ति का ही द्योतक होना देखा गया। भ्रमित होने का, रहने का, कार्य करने का मूल रूप जीवन ही है। शरीर को जीवन समझने के आधार पर भ्रम है। जीवन को स्वत्व के रूप में समझ लेना और उसकी अभिव्यक्ति में जीवन जागृति प्रमाणित रहना ही अनुभव सहज प्रमाण एवं जागृति है। अतएव यह स्पष्ट हुआ, जीवन ही भ्रमित, जीवन ही जागृत होना नियति सहज क्रिया है। Spencer, you want to read here? Yeah. It is only through a realized jivan that the complete expression takes place. Similarly, delusion has also been seen on the basis of deluded jivan. Realization and awakening both are expressions of fulfillment of jivan, while delusion is representative of unfulfillment. It is jivan itself which is at the root of becoming deluded, remaining deluded, and acting under delusion. Delusion is on the basis of assuming the body to be jivan. To understand the innateness of jivan, an evidence of its awakening in expression, is indeed the evidence of realization and awakening. In this manner, it becomes clear that it is jivan itself which is deluded or awakened, and delusion and awakening are natural activities in the course of destiny. Okay, thank you, both of you. Let us see it line by line. अनुभव संपन्न जीवन से ही जीवन सहज अभिव्यक्ति है। It is only through a realized jivan, Anubhav Sampann Jivan. Babaji is talking about two things here. One is Anubhav Sampann Jivan, and then the in Jivan Brahm. Okay, so Jivan Brahm is within the quotes. So I thought realized Jivan, Anubhav Sampann Jivan को भी quotes में कर देते हैं. So we know that we are talking about these two things. So it is only through a, within quotes, realized Jivan that the complete expression takes place. Now, what is the complete expression? Whatever is there in the existence, I have understood it, and then whatever I say is the truth, because whatever I say is aligned with the reality. Okay, I have understood the reality, so all my expression, so this is the complete expression takes place. जबकि भ्रम भी जीवन भ्रम के आधार पर ही होना देखा गया है. ओके, सिमिलरली डिल्यूजन हैज आल्सो बीन सीन ऑन द बेसिस ऑफ डिल्यूटेड. Okay, so realization or awakening is based on realized जीवन, and delusion is seen on the basis of deluded जीवन. एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं दोबारा. अनुभव संपन्न जीवन से ही जीवन सहज अभिव्यक्ति है, जबकि भ्रम भी जीवन भ्रम के आधार पर ही होना देखा गया. ओके, तो जो अनुभव है वो जागृत जीवन के आधार पर देखा गया है,
और भ्रम जो है वो भ्रमित जीवन या जीवन भ्रम के आधार पर देखा गया। जीवन भ्रम मीन्स हियर आई एम इंटरप्रेटिंग इट एज भ्रमित जीवन, भ्रम भी भ्रमित जीवन के आधार पर देखा गया। अनुभव और जागृति जीवन तृप्ति की अभिव्यक्ति होना पाया जाता है, जबकि भ्रम अतृप्ति का ही द्योतक होना देखा गया है। Realization and awakening both are expressions of fulfillment of जीवन। अनुभव और जागृति जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होना पाया जाता है। Realization and awakening both are expressions of fulfillment of जीवन, जबकि भ्रम अतृप्ति का ही द्योतक होना देखा गया है, while delusion is representative of unfulfilled। Okay. It is very clearly mentioned, which like in day-to-day life we can also feel that that uh, that delusion and unfulfillment, they are closely related with each other. If I am feeling unfulfilled, there is delusion. If there is delusion, I will feel unfulfilled. Okay. And there may be temporary fulfillments, but that continuous fulfillment, that will not be there. भ्रमित होने का, रहने का, कार्य करने का मूल रूप जीवन ही है। इट इज जीवन इटसेल्फ विच इज एट द रूट ऑफ बिकमिंग डिल्यूडेड। भ्रमित होने का, रहने का, रिमेनिंग डिल्यूडेड, और कार्य करने का, एंड एक्टिंग अंडर डिल्यूजन। तो भ्रमित होने का, रहने का, कार्य करने का मूल रूप जीवन ही है। It is Jivan itself which is at the root of becoming deluded, remaining deluded, and acting under delusion. शरीर को जीवन समझने के आधार पर भ्रम है। Delusion is on the basis of assuming the body to be जीवन। जीवन को स्वत्व के रूप में समझ लेना और उसकी अभिव्यक्ति में जीवन जागृति प्रमाणित रहना ही अनुभव सहज प्रमाण एवं जागृति है। To understand the innateness of Jivan and evidence of its awakening in expression is indeed the evidence of realization and awakening। है ना, इसको समझ लेना और उसकी अभिव्यक्ति, है ना, the ability to clearly articulate it, to clearly express it, to clearly communicate it. So I have understood it, the Jivan, and then I can explain it also very clearly। इसी में जागृत जीवन जागृति प्रमाणित रहना ही अनुभव सहज प्रमाण और जागृति है। दिस इज द इंडीड द एविडेंस ऑफ रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग। अतएव यह स्पष्ट हुआ, जीवन ही भ्रमित, जीवन ही जागृत होना नियति सहज क्रिया है। Okay, so most simply put, we can say it is the Jivan itself which remains deluded, or the Jivan itself which remains or becomes awakened। Okay, अब साथ में नियति सहज क्रिया है। Like it both of these things are seen in destiny, in destiny। So नियति को हम लोगों ने, the word we have taken is destiny। So now just to include that, by including that, the sentence becomes, in this manner it becomes clear that it is जीवन itself which is deluded or awakened। ये यहाँ तक हो गया। अतएव यह स्पष्ट हुआ, जीवन ही भ्रमित, जीवन ही जागृत होता है, और यह नियति सहज क्रिया है। And delusion and awakening are natural activities in the course of destiny। It is just like, I think again, that child example, if we take, when a child is born, and by the time it grows up and it can walk confidently, till that time it will fall down also, it is a natural activity। So till it is able to walk, its falling down is a normal activity in the process of going towards becoming confident in walking। So delusion and awakening are natural. In that sense, delusion and awakening are natural activities in the course of destiny। So delusion is a part of journey towards awakening। भैया जैसे आपने यहाँ पे जीवन सहज के लिए नेचुरल वर्ड यूज किया,
आपने जो पहली लाइन थी उसमें नेचुरल सहज को कंप्लीट लिख दिया, तो वहां पे भी नेचुरल लिख सकते हैं या तो वहां ये पे वो ना ज्यादा? फिर ये थोड़ा सा इट्स नॉट ए मैकेनिकल काइंड ऑफ थिंग, काफी बार क्या रहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं, तो वहां पर वो अच्छा लगा होगा इसलिए लिखा होगा, बट वी कैन ट्राई इट ऑल्सो। कौन सी वाली लाइन में कह रहे हैं ये यहाँ पर? पहली लाइन, इट इज ओनली थ्रू ए रियलाइज जीवन दैट हाँ द जी। कंप्लीट एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। ओके। तो कंप्लीट की बजाय नेचुरल एक्सप्रेशन, नेचुरल इटसेल्फ इज ए कंप्लीट, बिकॉज अगर इमेजिनेशन के भी तीन पार्ट देखें तो भैया नेचुरल हम्म। ही जो है वो दैट इज द राइट पार्ट है, अदरवाइज वो भी ठीक है। सेंसेशंस। यस 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 तो यस। इट्स इट्स ए सजेशन कि इसमें कंप्लीट वर्ड, उस समय मुझे लग रहा था कि कोई बेटर वर्ड क्या हो सकता है, तो हम्म नीचे आप ही के द्वारा मिल गया नेचुरल वर्ड, हम्म तो इसलिए मैं हम्म सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इट हम्म। इट कैन बी नेचुरल एक्सप्रेशन, but आ yes, we can take suggestion from others and you can हाँ हाँ। also uh, एनी अदर इनपुट्स? एनी अदर इनपुट्स? Sorry भैया, आप did you suggest an alternative word? या नेचुरल कह रहे हैं भैया, गणेश भैया का सजेशन आया कि इसमें ये नेचुरल भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने काफी जगह के ऊपर इसके लिए, जैसे यहाँ पर भी जो है ना, ये नियति सहज क्रिया है, यहाँ पर नेचुरल एक्टिविटी लिखा इन द कोर्स ऑफ डेस्टिनी, तो सहज के लिए नेचुरल वर्ड भी यूज किया है। तो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर भी दैट द नेचुरल एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। इट इज ओनली थ्रू रियलाइज इवन दैट द नेचुरल एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। पता नहीं भैया, बात तो ठीक लग रही है, कंप्लीट की जगह कुछ और होना चाहिए शायद, बट जी जी जी। नेचुरल एक्सप्रेशन पता नहीं। तो अनुभव संपन्न जीवन से ही जीवन सहज अभिव्यक्ति है ना। पहले हिंदी में कि अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे इसको, क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस सेंटेंस को? पहले वो सेंस देख लेते हैं। अनुभव संपन्न जीवन से ही जीवन सहज अभिव्यक्ति। इसका मतलब यही होगा कि जब अनुभव हो गया तो फिर हम्म। जो कोई भी इंसान को जब अनुभव हो गया तो वो एक सहज तरीके से करेगा, जो कि अभी सब कुछ भ्रम या ऐसा असहज है, तो वो सहज तरीके से करेगा। ओके। हाँ, मुझे मुझे ऐसे लग रहा है भैया। ठीक है। आई एग्री दैट इज करेक्ट। वो भी अपने में ठीक ही लग रहा है। ओके, आई थिंक वी कैन देन चेंज इट टू दैट। ये हिंदी में तो ऐसा ही मीनिंग लगता है कि अ, जैसे जीवन का जो मतलब जैसा होना चाहिए जिसके लिए वो बना है, हम्म। तो वैसी उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी अनुभव संपन्न होने से। जी। तो वो जैसा है अब जिसके लिए बने, तो फिर नेचुरल ठीक लग रहा है। हाँ, नेचुरल ठीक है। ठीक लग रहा है भैया। बढ़िया जी। बढ़िया भैया। बढ़िया हो गया। ये ठीक है। ये ठीक है। कलेक्टिवली जो है ना, दिस इज गेटिंग मोर एंड मोर रिफाइंड। गुड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Sorry भैया, I wanted to यस। add या something. सॉरी सॉरी सॉरी। जी। um, कहाँ गए वो लाइन? हाँ, ओके। जबकि भ्रम भी जीवन भ्रम के आधार पर ही होना देखा गया है। सो एक्चुअली इंग्लिश में ना ये होना शब्द का ट्रांसलेशन मिसिंग है, एंड इट हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव, बिकॉज ओके। अगर आप हिंदी में से होना हटा देंगे तो इसका मीनिंग काफी चेंज हो जाता है। हम्म। जबकि भ्रम भी जीवन भ्रम के आधार पर ही होना देखा अब गया एक बार इसको है। होना के बिना पढ़िए। तो जबकि भ्रम भी जीवन भ्रम के आधार पर ही देखा गया है। हम्म। Similarly, delusion also has been seen on the basis of deluded जीवन।
So has also been seen occurring or happening. हाँ, मेरे को बिल्कुल अभी आपने बोला तो सिमिलरली the occurrence of delusion is also, ऐसा करें जी जी, परफेक्ट। या फिर सीन हटा देंगे, द डिल्यूजन अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिल्यूटेड, वैसा करते हैं, सीन को हटा दें, मतलब देखा गया है, मतलब वो इट अकर्स, तो समझ में यही आया है कि इट अकर्स। हाँ, वो सीन हटा देंगे तो वो एकदम कन्विंसिंग सेंटेंस की दिस इज फैक्ट, दिस इज द फैक्ट हम्म। लगता है, और होना देखा गया है, थोड़ा सा यूं लगता है कि आप भी सोचिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो हिंदी में है फिर वो तो देखा गया है, तो फिर सीन भी रखते हैं। हाँ जी, मुझे ये बेटर लग रहा है भैया, अभी जो ठीक है, सेंटेंस। सिमिलरली द अकरेंस ऑफ डिल्यूजन हैज आल्सो बीन सीन ऑन द बेसिस ऑफ डिल्यूजन। गुड, वेरी गुड। और कुछ, एनीथिंग एल्स? और दूसरा, ये मुझे लाइन थोड़ी समझ नहीं आई ठीक से, ये जो जी टू अंडरस्टैंड द इनेटनेस ऑफ जीवन, अ, जी, उसके एक बाद ये सेकेंड, जो कॉमास के बीच में है। एक सेकेंड, जी ये हिंदी वाले को भी ना सामने ले लेते हैं जी। जीवन को स्वत्व के रूप में समझ लेना और उसकी अभिव्यक्ति में जीवन जागृत प्रमाणित रहना ही अनुभव सहज प्रमाण एवं जागृति है। राइट, सो ठीक है? हाँ, जी। तो इंग्लिश में हम जब लिख रहे हैं इसको, टू अंडरस्टैंड द इनेटनेस ऑफ जीवन, and then there is a certain expression in commas. So generally commas का मतलब ये रहता है कि इसको हटा भी देंगे तो भी हम लोग complete sentence देखेंगे। So यहाँ पे मुझे थोड़ा सा unclear है, to understand the innateness of जीवन is indeed the evidence of realization। मतलब एक बार हिंदी को दोबारा पढ़ते हैं। जी, जीवन, तीन चीजें कह रहे हैं, जीवन को स्वत्व के रूप में समझ लेना, वन, और उसकी अभिव्यक्ति में जीवन जागृत प्रमाणित रहना, सेकंड। ये दोनों क्या है? यही अनुभव सहज प्रमाण एवं जागृत। तो जीवन को स्वत्व के रूप में समझ लेना और उसकी अभिव्यक्ति में जीवन जागृत प्रमाणित रहना, ये दोनों मिलके अनुभव सहज प्रमाण एवं जागृति है। अब इसको देखते हैं इंग्लिश में कैसा कैप्चर हो रहा है। टू अंडरस्टैंड द इनेटनेस ऑफ जीवन, ये फर्स्ट हो गया, एंड एविडेंस ऑफ इट्स अवेकनिंग एंड इन एक्सप्रेशन, है ना, और उसकी अभिव्यक्ति में जीवन जागृत प्रमाणित रहना, है ना, एंड एविडेंस ऑफ इट्स अवेकनिंग इन एक्सप्रेशन ही अनुभव सहज प्रमाण एवं जागृति इज इंडीड द एविडेंस ऑफ रियलाइजेशन एंड। okay. So which one is actually the evidence? Is it the to understand? Because to understand is a verb। तो अंडरस्टैंडिंग करें क्या? हाँ, जीवन को स्वत्व के रूप में समझे ना, मतलब वंस इट हैज बीन कंप्लीटेड, दिस इज द सेंस। ओके, वंस दिस इज डन एंड एंड इट्स कंटिन्यूटी, एंड देन उसकी अभिव्यक्ति में जीवन जागृति प्रमाणित रहना, दिस accomplishment and its continuity, this is अनुभव सहज प्रमाण एवं जागृति। so how about we do something like the understanding of the innateness of Jivan? हाँ, ओके, ओके, यस, आई एम गुड विद दैट। द अंडरस्टैंडिंग of the innateness of जीवन and evidence of its awakening in expression is indeed the evidence. I'm good with this, भैया। जी भैया, no, Hmm, this is fine। good, good, good. These are some fine points which, yes, we iron out in our discussions. Good. ठीक है Anything भैया, else? that's it, thank you। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन, एनी वॉलंटियर्स? पूनम दीदी, आपने पढ़ना था। I think she left भैया, she put a comment अच्छा, ओ, mentioning। ओके, अच्छा, ओके, भैया मैं पढ़ देती हूँ दूसरे जी पूनम जी, को। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, यू आर मोस्ट वेलकम। भ्रमित स्थिति में मानवीयता के विपरीत, यहीं से पढ़ना है ना भैया? जी जी,
भ्रमित स्थिति में मानवीयता के विपरीत जीवों के सदृश्य प्रिय हित लाभ प्रवृत्ति जीना देखने को मिलता है, जबकि मानव सहज मौलिकता मानवीयता ही है। जागृति सहज विधि से मानवीयता स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होती है। यही जागृति और ब्रह्म मुक्ति सहज प्रमाण है। इसी के आधार पर मानवीयता पूर्वक व्यवस्था में जीना बनता है। भ्रम पूर्वक अमानवीयता अर्थात पशु मानव एवं राक्षस मानव के रूप में जीना आकलित होता है, जबकि हर व्यक्ति मानवीयता से परिपूर्ण होकर जीना चाहता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, परंपरा जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि हर मानव संतान किसी अभिभावक के कोख में होता ही है। इसके उपरांत किसी धर्म संस्थान, राज्य संस्थान और किसी शिक्षा संस्थान में अर्पित होता ही है। यही संस्थाएं जागृति का धारक वाहक होने पर जागृत परंपरा है, अन्यथा भ्रमित परंपरा है ही। जागृति सबका वर है। जागृति का स्वरूप स्वयं व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। दूसरे विधि से मानवीयता पूर्ण आचरण जागृति है और तीसरे विधि से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीना जागृति है। इन द स्टेट ऑफ डिल्यूजन। एक मिनट देख लेते हैं दीदी, अगर इफ स्पेंसर इज स्टिल ठीक है, अवेलेबल ओके, एंड विलिंग टू रीड। बढ़िया। Yes. Yeah. In the state of delusion, human living is seen to be contrary to humanness and similar to animal kind, tendencies of pleasant, health, and profit, while actually it is humanness which is the essential nature of humans. Humanness gets evidenced effortlessly by way of awakening. This is indeed the evidence of awakening and liberation from delusion. It is only on this basis that living in orderliness by way of humanness becomes possible, while living in delusion in the form of animalistic and demonic human gets appraised as inhumane living, although every human wants to live entirely with humanness. Thus, we conclude that human tradition needs to awaken because every child is born to some parents and subsequently gets admitted invariably to some religious institution, some state institution, and some educational institution. These institutions, if they are bearer carriers of awakening, are awakened traditions. Else, they are, of course, the deluded tradition. All humans naturally embrace awakening. Awakening in its true form is harmony in oneself and participation in the overall system. In other words, human conduct is awakening. In yet other words, living in the family-based self-governance system is awakening. Good. Thank you, both of you. So we can look at it line by line. I don't know. Again, be very careful, all of you. The Hindi section is only, 10 lines, but English one looks very big. I don't know why. Generally, English translation is, it occupies more space, but not this much. Let us see. भ्रमित स्थिति में मानवीयता के विपरीत जीवों के सदृश्य। In the state of delusion, human living is seen to be contrary to humaneness. मानवीयता के विपरीत. It is seen to be contrary to humaneness and similar to animal kind. है ना? अब जीवों के सदृश्य कैसे हुआ? प्रिय हित लाभ प्रवृत्ति जीना देखने को मिलता है। एनिमल काइंड विद इन में ब्रैकेट लिख दिया, टेंडेंसीज ऑफ प्लेजेंट हेल्थ एंड प्रॉफिट, जबकि मानव सहज मौलिकता मानवीयता ही है ना, इसको वैसे कह सकते हैं, जबकि मानवीयता ही मानव सहज मौलिकता है, while actually it is humaneness which is the essential nature of humans. जागृति सहज विधि से मानवीयता स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होती है. Humanness gets evidenced effortlessly by way of awakening. यही जागृति और भ्रम मुक्ति का प्रमाण है.
This is indeed the evidence of awakening and liberation from delusion. इसी के आधार पर मानवीयता पूर्वक व्यवस्था में जीना बनता है। भ्रम पूर्वक अमानवीयता अर्थात पशु मानव एवं राक्षस मानव के रूप में जीना आंकलित होता है, जबकि हर व्यक्ति मानवीयता से परिपूर्ण होकर जीना चाहता है। It is only on this basis that living in orderliness by way of humaneness becomes possible. है ना, जीना बनता है मतलब जीना संभव हो पाता है। इसी के आधार पर मानवीयता पूर्वक व्यवस्था में जीना संभव हो पाता है। So it becomes living in orderliness by way of humaneness becomes possible. जबकि भ्रम पूर्वक अमानवीयता अर्थात पशु मानव और राक्षस मानव के रूप में जीना आंकलित होता है। While living in delusion in the form of animalistic human and demonic human gets appraised as inhumane living. जबकि हर व्यक्ति मानवीयता से परिपूर्ण होकर जीना चाहता है। Although every human wants to live entirely with humaneness. इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, परंपरा जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि हर मानव संतान किसी अभिभावक के कोख में होता ही है। Thus, we conclude that human tradition needs to awaken because every child is born to some parents के कोख में होता ही है। इसके उपरांत किसी धर्म संस्थान, राज्य संस्थान और किसी शिक्षा संस्थान में अर्पित होता है, and subsequently gets admitted invariably to some religious institution, some state institution and some educational institution. यही संस्थाएं जागृति का धारक वाहक होने पर जागृत परंपरा है, अन्यथा भ्रमित परंपरा है। These institutions, if they are bearers carriers of awakening, are awakened tradition, else they are of course the deluded tradition. जागृति सबका वर है। All humans naturally embrace awakening. वर है मतलब जैसे वर होता है ना, उसको वरता है मतलब उसको स्वीकारता है, उसको एम्ब्रेस करता है। सो ऑल ह्यूमंस नेचुरली एम्ब्रेस अवेकनिंग। जागृति का स्वरूप है स्वयं व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। Awakening in its true form is harmony in oneself and participation in the overall system. तो ये तो जागृति का स्वरूप एक तरह से बताया। जागृति का स्वरूप है स्वयं व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। दूसरी विधि से मतलब अब जागृति को अगर दूसरे शब्दों में बोलना हो तो मानवीयता पूर्ण आचरण जागृति है। और फिर तीसरे तरीके से भी बता दिया, तीसरे तरीके से भी बोलना हो तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीना जागृति। तो इसको यहाँ कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स ह्यूमेन कंडक्ट इज अवेकनिंग, इन येट अदर वर्ड्स लिविंग इन द फैमिली बेस्ड सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इज अवेकनिंग। बताइए। भैया ये प्लेजेंट लिखना चाहते हैं हम लोग या प्लेजर लिखना चाहते हैं? तो ये प्रिय की दृष्टि में जब भी ये प्रिय हित लाभ आता है तो उसके लिए जो कीवर्ड रखा हुआ है वो प्लेजेंट, हेल्थ एंड प्रॉफिट ऐसा पलक करके चल रहे हैं, है ना। प्रिय हित लाभ जब भी आता है तो बिल्कुल वो प्लेजेंट, हेल्थ एंड प्रॉफिट यही चल रहा है। मतलब अब यहाँ पर जो है एक्चुअल में प्रिय हित लाभ प्रवृत्ति आ गया। नॉर्मली प्रिय हित लाभ को दृष्टि बताया गया, 6 दृष्टि रहती है प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य की। सो अब प्रवृत्ति आ गया तो आई हैव आल्सो पुट टेंडेंसी
Otherwise, if we see another possibilities to see, like in what happens actually is when one is living like the animal kind, then only the perspectives of pleasant health and profit, they are active. Okay, Nyaya Dharma Satya, those perspectives are dormant, they are not active. If you think okay, like I would have been okay with having perspectives here also. यहाँ पर प्रिय हित लाभ दृष्टि लिखा रहता तो भी ठीक रहता है. No, the tendencies and all that is fine. We have pleasant is जी something that हम थोड़ा सा pleasant actually is adjective होता है और जी यहाँ पर noun की जरूरत है. ठीक है. ठीक है, मतलब समझ लेते हैं इसको. आई एम नॉट very comfortable changing this keyword here, more Sure, so sure. if it is coming like priya hit lav. Anyone else, anything? आप भी देव भाई कुछ और कमेंट भी है तो बताइए. Maybe all good. ठीक है. भैया मुझे भी ना जब पहले भी ये वर्ड प्लेजेंट आया था तो प्लेजर ही स्ट्राइक किया था, लेकिन ओके. आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि जो पहले की बुक्स हो उसमें भी प्लेजेंट वर्ड यूज किया हो, इसीलिए आप इसको लेके चल रहे हैं शायद. हाँ भैया, जो अदरवाइज जो हाँ, मतलब वो एक्चुअल में क्या रहता है, जब काफी बारी क्या आता है कि मतलब प्रिय के साथ में अप्रिय भी आता है, तो अगर हम प्रिय को प्लेयर लिख देते हैं, फिर जब अप्रिय लिखना होगा तब अनप्लेयर या कुछ कुछ डिसप्लेयर, वो सब कुछ बनता नहीं है फिर. तो प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, प्रिय, अप्रिय, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन के रूप में भी ठीक चलता है. ठीक है भैया. ठीक है, चलिए. जी. एनीवन एल्स? और कौन कौन है? शिल्पा दीदी ने तो रिग्रेट किया था शुरू में. वंदना दीदी, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं? आई सी संजना हैज आल्सो ज्वाइंड. नाइस टू सी यू संजना. जी भैया, मैं पढ़ सकती हूँ. जी जी, वंदना दीदी. जी. इंगित किए गए तथ्यों और उनके विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि जीवन ही भ्रमित रहता है, जीवन ही जागृत रहता है. जीवन जागृति और भ्रम का स्रोत प्रधानतः मानव परंपरा ही है. परंपरा स्वयं जागृत रहने की स्थिति में जागृति की लोकव्यापीकरण होता है. भ्रमित परंपरा होने की स्थिति में भ्रम का ही लोकव्यापीकरण होता है. इस दशक तक यही हाथ लगा है. ऐसी स्थिति में किसी न किसी मानव में अनुसंधानिक आवश्यकता उत्पन्न होकर स्वयं जागृति होने की उपरांत जागृत परंपरा के लिए स्रोत बन जाता है. भ्रमात्मक विधि से ही चित्रण विश्लेषण के आधार पर बहुत अनुसंधान हुए हैं, जबकि जागृति सहज अनुसंधान मानव व्यवस्था, मानव संचेतना सहज विधि से प्रस्तावित होना, परंपरा में स्वीकृत होना, लोकव्यापीकरण होना एक आवश्यक स्थिति. इंग्लिश का भी पढ़ना है भैया कि जी स्पेंसर हाँ, पढ़ेंगे? मैं आई सी दैट स्पेंसर हैज आल्सो लेफ्ट. ही हैड ओके. आल्सो मेंशन्ड दैट ही विल हैव टू लीव अर्ली, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. By all the facts and analysis so far, it is clear that it is Jivan itself which remains deluded or awakened. Predominantly, it is human tradition itself which is the source of awakening and delusion in Jivan. If the tradition is awakened in itself, it disseminates awakening. In the state of deluded tradition, it is the delusion that gets disseminated. That is what has happened so far. Till the last decade of the 20th century, in such a situation,
In such a continue. situation, the need for original or inventive exploration is certain to arise in some people who, upon getting awakened, become the source of awakened tradition. Even in the deluded way, many explorations have been undertaken based on imaging and analyzing activity. Though the need for exploration for awakening and humane system, its presentation to humankind, its acceptance by the tradition, and its dissemination has always been there. बढ़िया दीदी, थैंक यू। लाइन बाय लाइन देख लेते हैं इसको। इंगित किए गए तथ्यों और उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जीवन ही भ्रमित रहता है, जीवन ही जागृत रहता है। By all the facts and analysis so far, it is clear that it is जीवन itself which remains deluded or awakened. जीवन जागृति और भ्रम का स्रोत प्रधानतः मानव परंपरा ही है। Predominantly, it is human tradition itself which is the source of awakening and delusion in जीवन। है ना? जागृति का भी स्रोत मानव परंपरा ही है, भ्रम का स्रोत भी मानव परंपरा स्वयं जागृत रहने की स्थिति में जागृति का लोक व्यापकरण होता है, भ्रमित परंपरा होने की स्थिति में भ्रम का लोक व्यापीकरण। If the tradition is awakened in itself, it disseminates awakening. In the state of deluded tradition, it is the delusion that gets disseminated. इस दशक तक यही हाथ लगा है। This is what has happened so far till the last decade of the 20th century. इस दशक तक यही हाथ लगा है, तो मतलब लाइक ऐसा लगा, ये कैप्चर ऐसा बनाया, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड सो फार टिल दिस लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century। ऐसी स्थिति में किसी न किसी मानव में अनुसंधानिक आवश्यकता उत्पन्न होकर स्वयं जागृत होने के उपरांत जागृत परंपरा के लिए स्रोत बन जाता है। So in such a situation, the need for original or inventive exploration is certain to arise in some person who, upon getting awakened, becomes the source for awakened tradition. This need will be felt in some person, this is natural, and then when that person becomes awakened, then that person becomes the source of awakened tradition. So in such a situation, the need for original or inventive exploration, है ना, अनुसंधानिक आवश्यकता, is certain to arise in some person who, upon getting awakened, becomes the source for awakened tradition. भ्रमात्मक विधि से भी चित्रण विश्लेषण के आधार पर बहुत अनुसंधान हुए। Even in the deluded way, many explorations have been undertaken based on imaging and analyzing activities. जबकि जागृति सहज अनुसंधान, मानव व्यवस्था, मानव संचेतना सहज विधि से प्रस्तावित होना, मानव परंपरा में स्वीकृत होना, लोक व्यापीकरण होना एक आवश्यक स्थिति रही है। Although the need for exploration for awakening and humane systems, its presentation to humankind, its acceptance by the tradition, by human tradition, and its dissemination has always been. Okay, so what there are three things which are being said here. Okay, if tradition is awakened in itself, it disseminates awakening. Otherwise, delusion gets disseminated. This is what has happened so far. This is one thing. In such a situation, it is bound that some person will feel the need of this inventive or original exploration, and then that person becomes the source of awakened tradition. Till this materializes, till this occurs, even in the deluded state also, people are trying that. Many explorations have already been undertaken. Okay, and although the need for exploration, now ये जबकि वाला जो है ना, I am also not very sure whether this although से conjunction बनेगा दोनों sentences का. Okay, so even in the deluded way, many explorations have happened. Okay, and what is the cause for that? What is that? Its root is the need for exploration, for awakening,
and humane systems, its presentation to humankind, its acceptance by human tradition, and its dissemination. This has always been there. है ना, ये एक आवश्यकीय स्थिति रही ना। इसको वर्ड बाय ये फ्रेज बाय फ्रेज देख लेते हैं। जागृति सहज अनुसंधान, जागृति सहज अनुसंधान मीन्स एक्सप्लोरेशन फॉर अवेकनिंग। मानव मानव व्यवस्था मानव संचेतना विधि से प्रस्तावित होना। ह्यूमेन सिस्टम्स, इट्स प्रेजेंटेशन, प्रस्तावित होना, इट्स प्रेजेंटेशन टू ह्यूमन काइंड। परंपरा में स्वीकृत होना, इट्स एक्सेप्टेंस बाय ह्यूमन ट्रेडिशन, लोकव्यापीकरण होना, एंड इट्स डिसेमिनेशन। ऑल दिस हैज ऑलवेज बीन देयर। ये जो है स्लाइटली लॉन्गर एंड ट्रिकी सेंटेंस है। बताइए। इसको ऑल्दो की जगह आई थिंक हम इसको बिकॉज भी कर सकते। Even in a deluded way, many explorations have been undertaken because the need of exploration for awakening, and this has always been. कि मुझे बिकॉज बेटर लग रहा है। जी, मुझे भी I was not happy with although। हिंदी में तो जबकि आया हुआ है, यहाँ पर क्योंकि से जो है वो ज्यादा अच्छा सेंस आता है ना। इस पे बहुत अनुसंधान हुए क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा से रही। बढ़िया है। भैया सॉरी बट मेरे को लगता है कि मतलब अगेन आई एम यस यस, कट द चेज वाला थोड़ा स्टाइल है, तो फर्स्ट पैरा में काफी ट्रिमिंग हो सकता है। हाँ करवाओ ना, बिल्कुल भैया, वो करवाओ। सो फर्स्ट थिंग, जो हमने इंगित शब्द है उसको जी हिंदी में आई थिंक सो फार लिखा है। So either insinuated or highlighted facts and analysis, by the ओके highlighted facts and analysis and so far हटा सकते हैं। जी, बढ़िया। all भी हटा सकते हैं, मतलब वो redundancy वाला हो जाता है फिर। ओके ओके, यस। Yeah, this is fine. उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, आप ना आप अनहेसिटेटिंगली बताओ, संकोच नहीं करना कुछ भी, है ना। दीज आर गुड इनपुट्स। जी। सेकंड लाइन predominantly जहाँ से शुरू हो रहा है। हम्म I know this is you always say this is like a to give more impression, हम्म, but then how about predominantly uh, the human tradition itself is the source of awakening and delusion। predominantly के बाद, हाँ जी, हाँ जी, क्या इट इज को इस हटा it दें। is को हटाकर the human tradition itself is, which को भी हटा। ओके। जीवन जागृति और भ्रम का स्रोत प्रधानतः मानव परंपरा ही है। प्रिडोमिनेटली द ह्यूमन ट्रेडिशन इटसेल्फ इज द, ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज गुड, फाइन, बढ़िया हो गया। 3 वर्ड्स निकल गए। जी, और जो इसी की जो लास्ट लाइन है जो बहुत बड़ी है, हम्म if the tradition is awakened, so not this one, if the tradition is awakened। हाँ ये ओके। can you highlight the कौन सा वाला। इंग्लिश में फर्स्ट पैराग्राफ हाँ प्रीडोमिनेटली की जो लाइन है उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है if the tradition। यस, या सो इसको मैं कुछ ज्यादा ही छोटा करने का बोलने वाला हूँ। करवाओ करवाओ करवाओ। एक काम करते हैं, इसको बचा लेते हैं एंड देन वील सी व्हाट वी गेट। जी बताइए। so the awakened tradition disseminates awakening। ओके। आप समझ ही गए होंगे वैसे तो मैं The awakened tradition disseminates disseminate, awakening yes,
and While the while deluded while while we ठीक है, the deluded tradition disseminates delusion. या मतलब या सेंस वही निकल रही है और हम्म बड़ी हम्म कन्विंसिंगली निकल रही है. हम्म लाइक जब मैं बोल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको भी अगर हम करें ना तो मेरे को ये फर्स्ट सेंटेंस तो ठीक लग रहा था. इफ द ट्रेडिशन इज अवेकन्ड इन इटसेल्फ इट डिसेमिनेट्स अवेकनिंग एल्स डिल्यूजन गेट्स डिसेमिनेटेड. लेकिन वो फिर वो एल्स की जगह वो भ्रमित परंपरा भी आ जाए. ठीक है, वाइल द डिल्यूटेड ट्रेडिशन डिसेमिनेट. ठीक है, आई एम गुड विद दिस भैया. ले लेते हैं इसको. इसमें और भी नहीं कुछ नहीं. निकालना है. ठीक है. और कुछ ठीक निकालना. है तो ठीक है. दिस इज फाइन. गुड. और बताइए. नहीं भैया यही. थैंक यू. ठीक है. एनीवन एल्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कौन पढ़ेंगे? एनी वॉलंटियर्स? शिल्पा दी. ओके हाँ ठीक. आप फिर आप ही कर रहे थे भाई. सेकंड राउंड आपसे ही शुरू जी जी करते हैं. श्योर श्योर. जीवन रचना के आधार पर जीवन में आत्मा अविभाज्य क्रिया होना स्पष्ट हो गई है. अस्तित्व में अनुभव ही आत्मा सहज क्रिया है. अनुभव ही दूसरे नाम से प्रत्यावर्तन क्रिया है. इसका परावर्तन क्रिया को प्रामाणिकता प्रमाण नाम दिया है. अनुभव मूलकता आत्मा में होने वाली क्रिया है. यही जागृति है. यह जागृति सह अस्तित्व में अनुभव मूलकता आत्मा में होने वाली जागृति ही है. जागृति सह अस्तित्व में अनुभव हुई है. इसी जागृत स्थिति में होने वाली गति को प्रत्यावर्तन नाम दिया गया है. संपूर्ण प्रत्यावर्तन दर्शन और ज्ञान नाम से प्रतिष्ठित है. ज्ञान और दर्शन स्वाभाविक रूप में ओतप्रोत रूप में वर्तमान है. संपूर्ण अस्तित्व सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही स-अस्तित्व का मूल स्वरूप है. इसका सामान्य कल्पना हर मानव में होना संभव है. कल्पना का मूल स्रोत आशा, विचार, इच्छा का अस्पष्ट गति रूप है, क्योंकि संपूर्ण कल्पनाएं परावर्तन में कार्य रूप रहना देखा जाता है. मानव ही कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है. इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति प्रकारांतर से कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है. भ्रमित मानव द्वारा कल्पनाशीलता का सर्वाधिक प्रयोग शरीर और इंद्रिय सन्निकर्ष के रूप में ही स्वाभाविक है. यह भ्रम विवशता है. यही कल्पनाएं चिन्हित रूप में स्पष्ट होने के लिए तत्पर होते हैं. तभी विधिवत विश्लेषण और निश्चित चित्रण विचार रूप में संभावनाओं को स्वीकारना बनता है. संभावनाओं का लक्ष्य प्रिय हित लाभ सीमाओं में सीमित रहना पाया जाता है. यही भ्रमात्मक कार्य सीमा का अथ इति है. By now, on the basis of the constitution of Jivan, it is clear that Atma is an inseparable activity in Jivan. Realization in existence is indeed the natural activity of Jivan. Realization itself, by another name, is the activity of reflection, and its projection activity has been named as authenticity and evidence. Realization is an activity which basically takes place in Atma. This itself is awakening. In other words, this awakening is realization in coexistence.
which happens in Atma. The endeavor to achieve this state of awakening has been named as reflection. All reflection is collectively named as holistic view and knowledge. Knowledge and holistic view are naturally present in the commingled form. Whole existence is basically the coexistence of insentient and sentient nature saturated in omnipotence. It is possible for everyone to have this conceptual understanding. Haphazard motion of hope, thought, and desire is the main source of imagination because all imaginations are seen to be engaged in manifestation. Humans use imagination, or in other words, every person uses imagination in diverse ways. Deluded humans use imagination by focusing predominantly on body and sensory proximity. This is the helplessness under delusion. These imaginations are definitely eager to become systematic. Only then acceptance of the possibility of methodological analysis and definite visualization thoughts occurs. Until then, the focus of possibilities is within the boundaries of pleasant, health, and profit. This is the boundary within which the deluded actions begin and end. Okay, it's slightly longish paragraph and we will need discussion. I think we will go beyond 9 o'clock, 5 minutes or so. कर लेते हैं पूरा है ना एक बार begin किया है तो। जीवन रचना के आधार पर जीवन में आत्मा अविभाज्य क्रिया होना स्पष्ट हो गई है। हो गई है मतलब by now on the basis of the constitution of जीवन it is clear that atma is an inseparable activity in जीवन है ना। आत्मा जीवन में आत्मा अविभाज्य होना स्पष्ट हो गया। इफ यू रिमेम्बर दिस वाज द टाइटल ऑफ द चैप्टर आल्सो। ओके, आत्मा जीवन में अविभाज्य है। Okay, so I was sort of highlighting that. So by now, on the basis of the constitution of Jivan, it is clear that Atma is an inseparable activity in जीवन। अस्तित्व में अनुभव ही आत्मा सहज क्रिया है। वह आत्मा में क्या होने वाली क्रिया है? अस्तित्व में अनुभव हो जाए, यही आत्मा में होने वाली क्रिया है। रियलाइजेशन इन एग्जिस्टेंस इज इंडीड द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ जीवन। अनुभव ही दूसरे नाम से प्रत्यावर्तन क्रिया है। रियलाइजेशन इटसेल्फ बाय अनदर नेम इज द एक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रत्यावर्तन मन वृत्ति को समझता है, वृत्ति चित्त उसकी ओर देखना शुरू करता है। इट स्टार्ट फेसिंग मन स्टार्ट फेसिंग वृत्ति, अदरवाइज मन इज लुकिंग टुवर्ड्स बॉडी ओनली। सो प्रत्यावर्तन और रिफ्लेक्शन इज मन स्टार्ट्स facing vritti, vritti starts facing chit, chit starts facing buddhi, and buddhi starts facing atma. This is the reflection activity. So realization itself by another name is the activity of reflection, which is in Hindi pratyavartan, and its projection activity has been named as authenticity and evidence. So projection is how it projects itself to the outside world, है ना। इसको परावर्तन क्रिया बोलते हैं। तो परावर्तन में ये प्रामाणिकता और प्रमाण इसकी दो एक्टिविटीज बता रहे हैं, है ना, ऑथेंटिसिटी एंड एविडेंस। अनुभव मूलकता आत्मा में होने वाली क्रिया है, यही जागृति है। रियलाइजेशन इज एन एक्टिविटी विच बेसिकली टेक्स प्लेस इन आत्मा, है ना। अब अनुभव मूलकता में से मतलब सेंस यही निकाल रहे हैं, अनुभव आत्मा में होने वाली क्रिया है ना। मूलकता वर्ड ऐसे में ट्रांसलेशन में नहीं आया है। Realization is an activity which basically takes place in Atma. This itself is awakening. यह जागृति सह अस्तित्व में अनुभव मूलकता आत्मा में होने वाली जागृति है। इन अदर वर्ड्स, अब उसी चीज को ही कह रहे हैं तो इसको इन अदर वर्ड्स कर दिया। इन अदर वर्ड्स, दिस अवेकनिंग इन रियलाइजेशन इज रियलाइजेशन इन कोएग्जिस्टेंस व्हिच हैपेंस इन आत्मा, है ना। यह जागृति सह अस्तित्व में अनुभव ही है और ये आत्मा में होने वाली जागृति ही है।
जागृति सह अस्तित्व में अनुभव हुई है। ये भी उसी में ही कैप्चर हो गया, मेरे को लग रहा है। जागृति सह अस्तित्व में अनुभव हुई है, दिस अवेकनिंग इज विच हैपन्स इन आत्मा। फिर यहाँ पर आए हैं, इसी जागृत स्थिति में होने वाली गति को प्रत्यावर्तन नाम दिया है। ओके, द एंडेवर टू अचीव दिस स्टेट ऑफ अवेकनिंग हैज बीन नेम्ड एज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पहुंचने के लिए, है ना, इसी स्थिति में होने वाली गति को, इसी जागृत स्थिति में होने वाली गति को प्रत्यावर्तन नाम दिया है। संपूर्ण प्रत्यावर्तन दर्शन और ज्ञान नाम से प्रतिष्ठित है। संपूर्ण प्रत्यावर्तन, ऑल रिफ्लेक्शन इज कलेक्टिवली नेम्ड एज होलिस्टिक व्यू एंड नॉलेज। ज्ञान और दर्शन स्वाभाविक रूप में ओतप्रोत रूप में वर्तमान है। नॉलेज एंड होलिस्टिक व्यू आर नेचुरली प्रेजेंट इन द कोमिंगल्ड फॉर्म। मिंगल जो है, मिंगल जो है मतलब एक दूसरे से जैसे ना, टू थिंग्स गेटिंग टुगेदर। सो कोमिंगल जो है उसको ओतप्रोत के लिए अभी यूज किया है। संपूर्ण अस्तित्व सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही सह अस्तित्व का मूल स्वरूप है। Whole existence is basically the coexistence of insentient and sentient nature saturated in omnipotence. इसका सामान्य कल्पना हर मानव में होना संभव है। It is possible for everyone to have this conceptual understanding. कल्पना का मूल स्रोत आशा विचार इच्छा का अस्पष्ट गति रूप है, क्योंकि संपूर्ण कल्पनाएं परावर्तन में कार्यक्रम रूप रहना देखा जाता है। Haphazard motion of hope, thought and desire is the main source of imagination। है ना, ये अस्पष्ट गति को haphazard motion लिखा है, देख सकते हैं कुछ रिफाइन करना हो इसको तो। क्योंकि संपूर्ण कल्पनाएं परावर्तन में कार्य रूप रहना देखा जाता है। बिकॉज ऑल इमेजिनेशंस आर सीन टू बी एंगेज्ड इन, परावर्तन को प्रोजेक्शन किया है, आई फॉरगॉट टू चेंज इट, एंगेज्ड इन प्रोजेक्शन एक्टिविटी। मानव ही कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है। ह्यूमंस यूज इमेजिनेशन। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति प्रकारांतर से कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है। ह्यूमंस यूज इमेजिनेशन, और इन अदर वर्ड्स एवरी पर्सन यूजेस इमेजिनेशन इन डाइवर्स वेज। अलग अलग तरह से, प्रकारांतर से मतलब अलग अलग तरह से अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है। भ्रमित मानव द्वारा कल्पनाशीलता का सर्वाधिक प्रयोग शरीर और इंद्रिय सन्निकर्ष के रूप में स्वाभाविक है। Deluded humans use imagination by focusing predominantly on body and sensory proximity. यही भ्रम विवशता है। This is the helplessness under delusion. यही कल्पनाएं चिन्हित रूप में स्पष्ट होने के लिए तत्पर रहती है। तो भी पहले जो बोला था कि हैपेजर्ड है, अस्पष्ट है, यही कल्पनाएं चिन्हित रूप में स्पष्ट होने के लिए तत्पर रहती है। These imaginations are definitely eager to become systematic. तभी विधिवत विश्लेषण और निश्चित चित्रण विचार रूप में संभावनाओं को स्वीकारना बनता है। Only then acceptance of the possibility of methodical analysis and definite visualization निश्चित चित्रण विचार, visualization, definite visualization and thoughts occurs, तब तक संभावनाओं का बनता है। संभावनाओं का लक्ष्य प्रिय हित लाभ सीमाओं में सीमित रहना पाया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, आगे पॉजिटिव की बात हो गई थी कि जागृति के लिए क्या क्या करेंगे, अदरवाइज अब क्या आ गया है, अनटिल देन, ये मैंने ऐड किया है इसको, मतलब आप देख लो इसको, जब तक वो नहीं होता तब तक क्या होता है, अनटिल देन द फोकस ऑफ पॉसिबिलिटीज इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ प्लेजेंट हेल्थ एंड प्रॉफिट। अनटिल देन, है ना, संभावनाओं का लक्ष्य प्रिय हित लाभ सीमाओं में सीमित रहना पाया जाता है। तो बेसिकली क्या है, तब तक, जब तक ये नहीं हो रहा, आगे की स्पष्ट गति नहीं बन रही है, तब तक संभावनाओं का लक्ष्य
प्रिय हित लाभ सीमाओं में सीमित रहना पाया जाता है। यही भ्रमात्मक कार्य सीमा का अथ इति है। अथ मतलब स्टार्टिंग, इति मतलब एंड। So this is the boundary within which the deluded actions begin and end. So, like ये जो कल्पनाशीलता है, द इमेजिनेशन और द इमेजिनेटिवनेस, उसको प्रिय हित लाभ से आगे ले जाने वाला काम जो है उसके बारे में यहाँ पर। और प्रत्यावर्तन परावर्तन, उसको भी कुछ कुछ प्रत्यावर्तन इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन इज प्रोजेक्शन, उसके बारे में इसमें बात की। भ्रमित में जो है, भ्रमित मानव कल्पनाशीलता का सर्वाधिक प्रयोग शरीर और इंद्रिय सन्निकर्ष के रूप में करता है। Deluded humans use imagination by focusing predominantly on body and sensory proximity. This is it. I don't have much to add in this. आप लोग देखिए, कुछ कमेंट्स हो, कुछ ट्रांसलेशन में सजेशन हो तो you can take that. भैया, can you please scroll down a bit जी, towards the end? जी. ये भैया जो लास्ट की 3 लाइन है, इसमें कुछ एक ऑर्डर नजर आ रहा है, तो एक बार इसको बात कर सकते हैं हाँ हिंदी हाँ में। बिल्कुल, कैन यू बताइए। अच्छा, हिंदी? तो हाँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं ना कट पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा साथ साथ आ जाएगा तो एक स्क्रीन पे दिखेगा। बताइए। विच पार्ट? सो जो ऑब्वियसली भ्रमित मानव द्वारा कल्पनाशीलता का सर्वाधिक, सो हर व्यक्ति कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है, दिस इज फाइन। एंड देन भ्रमित मानव द्वारा कल्पनाशीलता का सर्वाधिक प्रयोग शरीर और इंद्रिय सन्निकर्ष के रूप में ही स्वाभाविक है। ओके, यही ब्रह्म व्यवस्था है। एंड देन यही कल्पनाएं चिन्हित रूप में स्पष्ट होने के लिए इसका क्या मतलब है भैया, चिन्हित रूप में स्पष्ट होने के लिए? यही कल्पनाएं मतलब हाँ जो हाँ, भ्रमित मानव की कल्पनाएं हैं। तो देखो, मतलब फैकल्टी तो वही है। फैकल्टी मतलब जो अपने में ताकत है ना, वो कल्पनाशीलता ही है। तो भ्रमित मानव में वो विवशता के रूप में, हेल्पलेसनेस के रूप में, कंपल्शन के रूप में दिखता है। और यही स्पष्ट, और वो क्या था, वो अस्पष्ट गति था, यहाँ लिखा ना, इसका अस्पष्ट गति रूप है। तो जी, उस अस्पष्ट से लिंक कर रहे हैं, ये अब स्पष्ट होना चाहता है, यही चिन्हित रूप से। डेफिनेटली दे वांट टू, है ना। अब स्पष्ट ओ, के लिए हमने क्या लिखा, दे मतलब सिस्टमेटिक। जो पहले हैपेजर्ड था वो राइट राइट। सिस्टमेटिक होना चाहिए, है ना। जब जी एक बार ये वाला प्रोसेस शुरू होता है, तब विधिवत विश्लेषण और निश्चित चित्रण के में संभावनाओं का स्वीकारना बनता है। तब तक जो है, मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तब तक संभावनाओं का लक्ष्य प्रिय हित लाभ सीमाओं में सीमित रहना पाया। अच्छा, मतलब वो जिसको जिसको इवैल्यूएशन बोलेंगे हम, कि यहाँ पे समीक्षा पूरी कुछ। हो गई। जी जी। जी भैया नमस्ते। जी जी, नमस्ते भैया। इसको यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे एकदम पिन पॉइंटेड जगह मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर ये हम्म। प्रॉब्लम है, जी यहाँ जी, से मतलब है। राइट 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 राइट। हाँ, थैंक यू। ठीक है भैया, आई थिंक मेक नहीं, सेंस। मतलब कैप्चर हो रहा है ठीक से, इंग्लिश में भी अगर पढ़ने से देखते हैं तो।
हाँ जी भैया, एक्चुअली मेरे को ना ये until then फिट नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं नहीं, सोच रहा था ये पूरा एक साथ है, बट आपने वो अस्पष्ट ऊपर लिखा है, उसके बाद यहाँ नीचे स्पष्ट लिखा है, हाँ उन हाँ, दोनों को जब कंपेयर किया तो आई थिंक इट मेक्स सेंस। ओके, ठीक है। बाद में भी देखिए इसको दोबारा से भी, है ना, कुछ रहेगा तो उसको रिवाइज कर ही लेंगे आपस में। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, एनीवन एल्स, एनीथिंग? So now I wanted to share one thing for the next session. When let me change it. और मैं बुक को खोलता हूँ जो पीडीएफ वाला है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हमने जो आज अभी पढ़ा है ना, वो ये वाले सेक्शन तक पढ़ा है। यही भ्रम विवशता है, यही कल्पनाएं चिन्हित रूप से स्पष्ट होने के लिए तत्पर रहती हैं, तभी विधिवत, है ना। और ये देन इट गोज टू द नेक्स्ट पेज। तो अब क्या है, बीच में ना ये 4 पेजेस आए हैं हिंदी वाली बुक में, जिसमें जागृत जीवन के 122 आचरण, 122 कंडक्ट्स ऑफ द अवेकन्ड जीवन, इसका एक टेबल है। ओके, दिस गोज टू 2 पेजेस। एंड आफ्टर दैट मानवीय संविधान का चित्रण है, दिस इज ऑन 1 पेज। एंड देन अस्तित्व में परमाणु का विकास है, दिस इज 1 पेज। सो देर आर 4 पेजेस ऑफ डायग्राम्स। Okay, after which, we have today covered up to this point. So what I was thinking is, before going to the next paragraph, we will begin the next session on these 4 pages where the tables and diagrams are there. So we will not be able to go in full details, okay, but at least we will have some discussion on this. श्योर भैया, मेक्स सेंस। So that, like, I mean, we'll have a look at it and see that whatever brief discussion we can have on this, and then we will continue. So I think maybe the next section will be devoted to these 4 pages of table and the diagram. I do not know, even, like, I am not clear. I will think over the week that how to cover it and how to include it in the text also. बिकॉज अभी तक तो टेक्स्ट ही चल रहा था हिंदी इंग्लिश वाला, ऑफ दिस टेबल एंड डायग्राम। आई विल फिगर आउट समथिंग, वील हैव ए डिस्कशन, एंड देन उसके बाद में फिर इस बुक को आगे कंटिन्यू। आई जस्ट थॉट दैट आई विल गिव यू ए indication that this is what we'll do next. Any comments, anything from anyone before we wrap up today's meeting? भैया शिल्पा दीदी हमारे साथ हैं आज, वो बोली नहीं, उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, वो थोड़ा सा गला खराब है। आपके ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बिल्कुल ओपनिंग में इतना कह दिया था कि आई विल बी इन द लिसनिंग मोड, थोड़ा गला खराब है। हाँ, मुझे लग ही रहा था, नहीं तो वो जी हमेशा पढ़ती हैं। जी 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 ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाइए शिल्पा दीदी। जी जी। आई एम सीइंग संजना आल्सो। संजना भी भूली नहीं है बिल्कुल। आई डोंट नो वेदर शी इज लिसनिंग। Yeah, I'm listening. अच्छा, ओके ओके ओके, गुड। एनी कमेंट्स, एनी ऑब्जर्वेशंस? No, it was good. Mostly ओके just in listening mode. ओके ओके, ठीक है ठीक है। Then it's already few minutes over 9, so we wrap up today's session and meet on next Sunday. Okay. Thank you. Thanks for joining. Namaste and थैंक यू। happy Diwali wishes to everyone. हैप्पी Namaste. दिवाली। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी Yes, जी दिवाली। जी।